Okay, we are getting in news from the national capital, viewers, where hundreds of students have now hit the streets against Congress wealth redistribution promise. We have a reporter from the ground. Harsha, can we have more details on the clashes in Delhi? So right now we are reporting from National Capital, and behind me are the several students. These students are from different colleges and institutes as well. These are the UG and PG students with placards in their hand, where they are protesting against Congress manifesto. And in Congress manifesto specifically, Congress, the inheritance tax and also the wealth distribution point, which is mentioned in Congress manifesto, the students are protesting on this agenda and on this issue. Right now these are the visuals where we could clearly see the students who are staging protest and also marching towards Congress office, and only 500 meters away from the Taj Mansingh Road is the Congress office, Chaubis Akbar Road, till where these students will go. And the sloganeering Youth for Viksit Bharat is being sloganed here outside Taj Mansingh Road. The students are marching right now. The placards which clearly states मेहनत आपकी कमाई कांग्रेस की, and there are several placards which says राहुल के पास माँ है और माओ भी. So these are the slogans which has been mentioned in the placard, and they are clearly stating that it is the high time that the country has to save the inheritance tax of their own, because Congress agenda is to give the inheritance tax to public, of the individual to the public. And also how Congress planning to speaking about the wealth redistribution. All these students are right now staging protest. We'll try to take a word from these students as well. आप लोग का नाम और आप कौन से कॉलेज से हैं? Which college do you represent? गलगोटिया यूनिवर्सिटी. So what is the core agenda? Core issue क्या है? हमारा एजेंडा यही है कि हम ये चाहते हैं कि हम जो संपत्ति, कांग्रेस की जो नीति है, जो संपत्ति को, जो जनता की संपत्ति को आधा करके, लूट करके, टैक्स को बढ़ा करके वो हमारे घर में घुसपैठी की तरह घुसना चाह रहे हैं, हम उस कांग्रेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. एक और बात, कांग्रेस के मैनिफेस्टो, ये जितने बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो कितना समझ पा रहे हैं जिसमें कि आज यहाँ पर पहुंचे जी? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या समस्या है एग्जैक्टली? इनहेरिटेंस टैक्स में क्या मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी समस्या है कि कांग्रेस ने जो टैक्सेशन का अपनी एक नीति जो बना के रखी है, जिसमें आम इंसान, जो गरीब गुरबे हैं, जो गरीब घर से आते हैं, जो आम इंसान है, जो मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, उनके लिए जो टैक्स की व्यवस्था, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था जो ला रहे हैं, उस रीडिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था से हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इस देश के, भारत के यशस्वी छात्र हैं और छात्रों का यही काम होता है कि छात्र देश की हित के लिए अपनी आवाज को उठाएं. और हम अपने प्रदर्शन पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है? ये नॉन पॉलिटिकल प्रदर्शन, ये छात्रों का प्रदर्शन है, ये छात्रों के हित की बात है, ये देश के हित की बात है, मध्यम वर्गीय परिवार के हित की बात है. So right now what we are looking at is the students marching towards the Congress office, and as the student from one of the university in Delhi NCR clearly stated that is the high time that youth has to come on road and stage a protest, because Congress mindset is clear from the manifesto. And right now the students are huge in number. There are more than 700 students who are marching towards the Congress office. We'll take word from other स्टूडेंट्स एज वेल. आप कौन से कोर्स में हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ कैसे पहुंचे? मैं बेसिकली स्टूडेंट हूँ, और मुझे लगता है ये सब बताने से कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, उससे अच्छा मैं ये कहूँ कि मैं भारत से हूँ, देश से हूँ, जो कि कांग्रेस खत्म करना चाह रही है कहीं ना कहीं अपनी नीतियों से, और जो कि हमेशा से दिखता आया है. ये आज की बात नहीं है, 70 सालों से देखना आया है. और अगर मुझे लगता है कि अगर ये सरकार बदली, इस समय ये जो बदली, तो ये बहुत ही एक मैं ये कहूँगा कि सिविल वॉर वाली सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि जो इस समय देश का माहौल हमेशा बनाए रखना, भले ही वो धारा 370 पे हमने देखा था कि कांग्रेस जो कह रही थी कि सब खत्म हो जाएगा, वो वैसा भी कुछ नहीं हुआ. और आज जो मैनिफेस्टो निकाला है, कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने पहले करी थी, जो कांग्रेस करती आई है, जो डिक्टेटरशिप का नारा आज कांग्रेस दे रही है, वो डिक्टेटरशिप का नारा दे रही है. कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ट्विस्ट कर रही है, उनके मैनिफेस्टो को भ्रम फैला रही है. क्या ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है? ये बहुत सवाल उठाया जा रहा है.
सर मैम पॉलिटिकल अगर देश की बात है तो लोग कहते हैं राजनीति गंदी है। राजनीति गंदी क्यों है? लोग जानना नहीं चाहते। अगर पॉलिटिकल मैटर भी है ये तो ये तो देश के लिए है ना। आप जो भी ये लोग ला रहे हैं, ये जो कहीं ना कहीं सर आज बीजेपी के खिलाफ अगर लोग कह रहे हैं कि नहीं है मुस्लिम मेजोरिटी नहीं थी तो क्यों कैसे जीत रही है? अगर देश के खिलाफ जा रही तो आप जनता को डिसाइड करने दीजिए ना, क्यों आप फोर्स कर रहे हैं? यानी कि देश का युवा कांग्रेस के मैनिफेस्टो से खुश नहीं है, उनको लगता है कि देश को तोड़ने का मैनिफेस्टो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। यस मैम। आप लोग को इनहेरिटेंस टैक्स और जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कही है कांग्रेस ने, वो कितनी समझ में आती है? आप युवा उससे क्या समझ पा रहे हैं? देखिए जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात है उसमें आपने मैनिफेस्टो में ठीक से रीड किया होगा। लाइक ये 2009 में मनमोहन सिंह का भी स्टेटमेंट आया था कि देश के संसाधनों पे सर्वप्रथम हक जो है अल्पसंख्यकों का है। और अभी मैनिफेस्टो में भी आपने पढ़ा होगा कि ज्यादा अल्पसंख्यकों को प्रायोरिटी दी जा रही है। तो मतलब बहुसंख्यक के लिए क्यों नहीं सोच रही है कांग्रेस? और हमेशा से ये गलत रहा है। आपने जब 1953 में ये लागू हुआ था तो इन्हीं की सरकार ने ये टैक्स हटाया था, राजीव गांधी ने टैक्स हटाया था, जिससे रेवेन्यू शायद उस समय में ये रेवेन्यू परसेंटेज था 85% का रेवेन्यू वो था। और जो टोटल कमाई हुई थी सरकार के पास वो 20 करोड़ की हुई थी, लेकिन तब भी राजीव गांधी ने हटवाया था। तो अगर हटवाया था तो उसको दोबारा क्यों लाया जा रहा है? बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि सारे जो उचित मुद्दे हैं, जो एक्चुअल में मुद्दे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, जॉब प्रॉस्पेरिटी के, उन सब से डेविएट करने के लिए बीजेपी एजेंडा फैला रही है। देखिए आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आप अभी भी गूगल खोल के चेक कर सकते हैं बेरोजगारी दर कांग्रेस के टाइम पे भी क्या था और अभी इन्फ्लेशन को भी देख लेंगे या महंगाई या बाकी चीजें देख लेंगे, वो अंडर कंट्रोल में है। बेरोजगारी है या तब भी है, तभी आज देखिए ना भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था पे है और अब भारत 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। तो कैसे बेरोजगारी का नया तोड़ भी निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी और हम खुश है काफी उससे। So what we were actually what we are witnessing in national capital today this morning is that several youth, more than 700 youths in huge number, 700 plus, the UG and PG students majorly are here protesting and staging march against Congress manifesto. As we can see the placards here which clearly says 70 साल में ना दी नौकरी ना संपत्ति, हम छीनेंगे आधी संपत्ति. So the main issue of this protest is the inheritance tax and the wealth redistribution which has been mentioned in Congress manifesto. We'll take a word from him. आपका नाम? प्रिंस। तो प्रिंस ये एक बात बताइए, आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या कहा गया है? युवा उससे क्या रिलेट कर रहा है? युवा अपनी बात यहाँ पे कैसे रख रहा है? हम लोग जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात पे कि कोई भी मतलब कैसे मिडिल क्लास का पैसा किसी को ऐसे नहीं बांट सकते, क्योंकि वो जो है हमारा बाप दादाओं का कमाया हुआ है। और जैसे कि ये जो बोल रहे हैं माइनॉरिटी, ये सब जो है पूरा हम उनके खिलाफ हैं। आप लोग को लग रहा है कि कांग्रेस का एजेंडा ये है कि आपके पैसे निकाल करके 50% पब्लिक डोमेन में रखें? यस, जो 50% पब्लिक डोमेन में रख दिए जाएंगे। एक बात बताइए, किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार से कोई भी व्यक्ति जब आता है तो उस मध्यम वर्गीय परिवार में वो व्यक्ति एक एक पाई जोड़ करके वो अपना पैसा जमा करता है, अपनी संपत्ति जमा करता है। और उस जमा की हुई संपत्ति में से कांग्रेस चाहती है कि हम वो चीज दूसरों में बांट दे। ये अगर कांग्रेस ये कहती कि अमीरों से ला करके हम गरीबों में बांटते, ठीक है, जो पहले से अपने जिंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। That was my colleague Harsha getting us the latest from the protest site where thousands of students have come forward to protest against redistribution of wealth, which was there in Congress's manifesto.